Now this is, listen this explanation very carefully. So many things you might can clear from this one. This is a existing file. The data is separated by the colon. Okay. Now this is a very common thing for you people. Only the thing is this, that the here the separation is with the help of colon instead of the space. Okay. Then obviously a slash n character is here, which is not visible in the file, due to which the line has been changed. Okay, here one slash n, here one slash n, and one slash n here also, because we can append more data in this one. So all these three lines are terminated by slash n. Now after this, this is our existing file. So datas are Ajay, Vijay, Vinay, 11th, 12th and 9th. Now this is the calling of the function which we are going to use to delete the data. Okay, now the Vijay will get copied into N and the 11th will get copied into C. We have to delete the record number 1 as well as the record number 2, because it is said either this, the name, or the class. So we have to delete both the record in this case. Now opening of file. Now these are the common steps of modification and deletion, so you have to do it. Read lines I have used here. You can use any loop. As you can see, the records are always in the form of lines, so the lines may be picked by the read lines or by the file object loop or by the read line loop. So I have used read lines. The first line will appear at the first index number of list, the second at the second index number of list, and the third will be at the third. The index number start from 0, 1, 2 like this. Okay, so the third record will appear on the second index number of the list. Now we are doing splitting. Now this is the important step. When you are using a splitting, it is going to split the data on the basis of colon. So first split will be 1, second split Ajay, and third split will be 11th. And what do you think? Only 11th? No, it will be like 11th and slash n, because the slash n is character here. ठीक है, जब भी हम यहाँ पे कुछ नहीं लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट डेलिमीटर क्या लेता है? वाइट स्पेसेस. उस केस में क्या होगा? स्लैश एन रिमूव हो जाएगा, लेकिन इस केस में स्लैश एन रिमूव नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट डेलिमीटर नहीं यूज़ कर रहे हैं. डिफ़ॉल्ट डेलिमीटर स्प्लिट का होता है वाइट स्पेस. उस केस में वो स्लैश एन को रिमूव कर देता है स्प्लिटिंग के टाइम पे. ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं लेगा. अब यहाँ पे आएंगे हम. लेट्स प्रिंट इट so that it could be clear to you. Okay, now after this again स्प्लिट में जो भी आएगा स्प्लिट में एक्स में वो अभी विजिबली हो जाएगा. देन वी आर कंडीशन प्लेसिंग अ कंडीशन. लॉजिकल नॉट नहीं लगाना है, इसलिए सिंपल कंडीशन लगा के उस पर नॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते. पूरी कंडीशन रिवर्स करनी थी. तो n इज नॉट इक्वल्स टू x1. x1 इज कंटेनिंग वॉट? अजय. सो विजय इज नॉट इक्वल्स टू अजय. कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड द C, that is 11th, is not equals to this one. Now what do you think? The condition is satisfied or not? The condition is not satisfied because the second index number is not having 11th only, it is having 11th and slash n. So it would not get match, and this record will get copied into the temporary file. Okay, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एरर फाइंड करने के लिए बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन भी है, इसीलिए यहाँ पे मैच नहीं करेगा. और आंसर क्या होगा स्टेप में? आपका टेम्परेरी फाइल में डेटा पहुँच जाएगा. ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्प्लिटिंग फिर से होगी. अगेन वी आर चेकिंग. सो हेयर इट इज़ विजय. ये वाला कॉपी नहीं होगा, एज द फर्स्ट कंडीशन वुड गेट फॉल्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा? विजय नॉट इक्वल्स टू विजय होगा. तो विजय नॉट इक्वल्स टू विजय तो नहीं ना, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो सेकंड रिकॉर्ड कॉपी नहीं होगा टेम्परेरी फाइल में. जी डॉट राइट करा रहे हैं टेम्परेरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए. नेक्स्ट में यहाँ पे जाएगा. तो विनय इज नॉट इक्वल्स टू विजय. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड 9th इज नॉट इक्वल्स टू दिस. अगेन अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड. 9th तो 11 के बराबर है ही नहीं, तो चाहे स्लैश एन हो चाहे ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो दिस रिकॉर्ड विल ऑल्सो गेट कॉपीड इन टू द फाइल.
Okay, so now execute, then the closing of file, remove and rename. Now let's execute our file to see what is going to be happen. आपकी जो फाइल बन रही है रिमूव होने के बाद उसमें कितने रिकॉर्ड पहुंच रहे हैं और स्प्लिट का डिस्प्ले क्या आ रहा है. ओके, सो रन द कोड. ना स्प्लिटिंग इसीलिए मैंने कराई, देख लीजिए /n आता है, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ डेलीमीटर विच इज़ डिफ़ॉल्ट, मतलब वाइट स्पेसेस के लिए डेलीमीटर नहीं लगा है, इसलिए लास्ट का डेलीमीटर या वाइट स्पेस रिमूव नहीं करेगा. ठीक है, अब ये हमने देख लिया स्प्लिट का रिजल्ट. अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो फाइल टेम्परेरी गई है उसमें कितने रिकॉर्ड्स आए. अकॉर्डिंग टू मी उसमें 2 रिकॉर्ड आए होंगे क्योंकि पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी. ना स्टूडेंट डॉट डैट ओपन करेंगे हम लोग, अजय एंड विजय. नाउ यू कैन सी वाई द अजय इज हेयर बिकॉज वी आर मैचिंग 11th एंड 11th इज नॉट मैचिंग विद दिस वन. ठीक है, हमने यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर पास कराया है this one is 11th, so 11th was not matching with this 11th, that is why this record has been copied into the temporary file. और इसीलिए ये कैसा लगा आपको, ये आपके डिलीट नहीं हुआ फाइल में और अपीयर हुआ. क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर. नाउ watch it again. Now here I am having a file where the data is separated by the space. ठीक है, अब ये दूसरी फाइल है जिसमें आपको स्प्लिट दिखा रहे हैं फिर से. दिस इज अ फाइल हैविंग अ डेटा विद द स्पेसेस. हेयर द सेपरेटर इज स्पेसेस. यहाँ पर तो /n है क्योंकि रिकॉर्ड बना है, लाइन चेंज हुई है. यहाँ पर भी टर्मिनेटेड बाय /n है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. एज दे आर वाइट स्पेसेस दैट इज वाई इट इज नॉट विजिबल इन द फाइल. ओके, नाउ इन दिस केस व्हेन वी हैव टू डू द स्प्लिट, अगर स्पेस से स्प्लिटिंग है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर यूज़ करते हैं. अब डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर में हमने इसको हटा दिया, डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर आ गया. ओके, अब नाउ जब हम इसको मैच करने बैठेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट होगा, फिर से ये 0 इंडेक्स नंबर पे जाएगा, ये 1 पे और ये 2 पे. जब यहाँ पे आएगा तो मैच करेगा विजय, विजय जो कि किसके अंदर कॉपी हुआ है, n के अंदर. तो विजय इज नॉट इक्वल्स टू x1. x1 पे क्या है, अजय. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, एंड सी में क्या है, 11th जो कि हमने यहाँ से भेजा है. 11 इज नॉट इक्वल्स टू x2. x2 पे क्या है, ये कहाँ हुआ है, x नाम की लिस्ट में आ गया है डेटा, तो ये x2 पे ये देख सकते हैं ये डेटा है. ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे वाइट स्पेसिंग डेलीमीटर यूज़ किया है स्प्लिट के लिए, यहाँ पे देखिए कोई पैरामीटर नहीं यूज़ है, तो डिफ़ॉल्ट में क्या लेगा, वाइट स्पेस. उसने /n को स्प्लिट करके हटा दिया है और यहाँ पर अब ये मैच कर जाएगा. जब आप चेक करेंगे कि 11th इज़ नॉट इक्वल्स टू 11, कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई. तो यहाँ पर विजय भी नहीं है. ठीक है, एंड दिस शुड बी नॉट इक्वल्स टू, तो ये तो विजय इज नॉट इक्वल्स टू अजय, कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड 11th इज नॉट इक्वल्स टू 11th, कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स. अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो जी डॉट राइट पे नहीं आएगा और इस रिकॉर्ड को कॉपी नहीं करेगा. यही हमारा टारगेट है. ना रिकॉर्ड नंबर 1 कॉपी होना चाहिए टेम्परेरी फाइल में, ना ही रिकॉर्ड नंबर 2 कॉपी होना चाहिए. रिकॉर्ड नंबर 2 फर्स्ट कंडीशन की वजह से कॉपी नहीं हो पा रहा है, रिकॉर्ड नंबर 1 सेकेंड कंडीशन की वजह से कॉपी नहीं हो पा रहा है. ठीक है, अब कौन सा कॉपी होगा, सिर्फ ये वाला. दिस इज गोइंग टू बी इन द टेम्परेरी फाइल. नाउ अगेन टेक अ लुक फॉर दिस वन. इसको फिर से रन करा के देखिए. व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, sorry, the move is not open here. I have to close my write and I have to open my move and then execute it. Now you can see, now this time it is not having a /n. Now this is due to the split default parameter white spaces, and now that is why it is not creating any problem and the file is deleting both the record, the first and the second one. अब हम ओपन करके देखते हैं कि हमारी जो टेम्परेरी फाइल है जिसको हम लेके चल रहे हैं, सॉरी जो हमारी फाइल में डेटा डिलीट हुआ है student.dat, उसी में हमने डिलीट किया है. तो
yes, it is deleted. So now only one record is present in this. तो अब it should be clear to you कि how the split is working. ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपके पास जहाँ भी डालीमीटर चेंज होगा वहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्लैश एन और कहाँ पे नहीं आ रहा है. अगर स्लैश एन आएगा, यहाँ पे पैरामीटर और कुछ भी है तो लास्ट इंडेक्स स्लैश एन रखेगा ही रखेगा. और अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ हो रहा है, मतलब कि वाइट स्पेस पैरामीटर यूज़ हो रहा है, तो वाइट स्पेसेस के बेस पे स्प्लिटिंग हो रही है, इसीलिए स्पेस भी हट रहा है और वहाँ से एक अलग तरह का स्लाइस निकल के आता है और लास्ट वाला स्लैश एन भी हट जाता है. क्लियर?